Hello student. In our last lecture of a gravitation chapter, okay, we are discussed about the universal law of gravitation given by Newton. Okay, and we are deriving the equation for the universal law of gravitation. F is equal to capital G m upon d square, and universal constant capital G is equal to F d square upon m into m. Okay, and value of G we are getting is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square upon kg square. Okay, and we are discussing some fundamental important properties or point of a gravitational forces. Okay, so now we will move ahead in this chapter, okay, for one more G. Okay. So as we know, when the velocity of a body is changing because of external force applied on it, and applying the external force, acceleration is produced in a body. Okay, this we are study in a second chapter, second law of Newton. Okay, F is equal to mass into acceleration. F is equal to ma. Okay, when we are applying the external forces, okay, the velocity of the object will be changed, and change in velocities produce the acceleration in body. Okay, and this acceleration produced in body is directly proportional to the mass and force applied on the body. If we are apply the more forces, body can produce more acceleration. If we apply the less forces, body can produce the less acceleration. Okay, so what should happen in case of gravitational force? Okay, here instead of external forces, we are discussing the gravitational forces. Okay, so the gravitational force of the earth acting on any of the object, okay, it produces an acceleration in a body, and this acceleration produced in body is because of gravitational forces only. We are considering all other external forces are absent. Okay, so this acceleration produced in body we are calling is a acceleration because of gravitational force, or we can say that gravitational acceleration or a gravity, we can say that. Okay, so how it should be happen, why it should be happen? Okay, so when any of the object, okay, drop down from the height, okay, and it fall down toward the center of the earth, then we are observing that when this object is coming near to the earth's surface, its speed is increased, its velocity is increased. Why it should be happen? Because we know that the gravitational force is depend on to the इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाएगा, फोर्स इंक्रीज होता जाएगा. फोर्स इंक्रीज होता जाएगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास तो कांस्टेंट है, सो एफ इंक्रीज होगा तो ए भी इंक्रीज होगा. So what happened when any object is fall from the height toward the earth? Okay, its speed is increases as it comes near to the earth's surface. Why this speed is increases? Because the distance between the object and earth is decreases. So acceleration of the object is increases because mass of the object will remain constant. Okay, so here this force is a gravitational force. Here this force is a gravitational force.
So here this acceleration is also gravitational acceleration. So instead of A, we are called it small g. We are called it small g. So here we are discussing the topic is acceleration due to gravity. Okay, acceleration due to gravity. Okay, and we are called it's a small g. We are called it a small g. So here what happens? Okay, okay, if this is our earth, and if any object of mass m is there, okay, at height h from here, and this is radius of earth. Okay, when this object is falling in downward direction, when this object is falling in downward direction, okay, velocity increase. इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. इनिशियली जब वो रेस्ट पोजीशन पे है तो यहाँ पे इनकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी. और जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा टुवर्ड्स द अर्थ तो क्या होगा? इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज. और वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन वो चेंज होगा, एक्सेलरेशन वैल्यू चेंज होगी, ठीक है. और यहां पे जो फोर्स लग रहा है, ओके, द फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है. तो ये जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन चेंज कर रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. तो दिस एक्सेलरेशन वी आर कॉल्ड इज ए स्मॉल g instead of a, because here the acceleration is produced is because of gravity, because of gravitational forces. All other forces we are considering it is absent. Okay, so what happened? Okay, here the force acting on the body, the force acting on the body we are getting is equal to mass into acceleration according to the second law of Newton. Okay, but here the force is a gravitational force. So instead of acceleration we can write it g. So A is equal to g we are getting. So this is our equation number 1 we are saying. Okay, क्या हो रहा है यहाँ पे कि when any object is fall from any height and is attracted toward the earth by the gravitational force, it's pulled toward by the gravitational force, so its velocity is increases, so its acceleration is changing. Okay, and here this acceleration changes is take place because of gravitational force, so we are called as acceleration of gravity. Instead of A we are called it g. So this force acting on the object by the earth, F is equal to mass into acceleration. So F is equal to we are getting m into g. Okay, so we are getting m into g. Now according to the universal law of Newton, F we are getting is equal to capital G m upon d square. This is equation number 2. कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? तो इट्स जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर जितना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है. तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग? एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर. ओके, so here small m is cancelled, mass of object over here and mass of object over here. Okay, so we are getting small g is equal to gm upon r square. Instead of d we are using is r, because here we are considering distance is radius of earth. This distance we are ignoring because it's very less as compared to the r value. Okay, so we are getting small g is equal to gm upon r square we are getting. Okay, and g is also acceleration, so SI unit of acceleration is meter per second square. This will be remain same, there is no change into the unit of acceleration. Okay, acceleration unit will be remain same, but value of g we are getting is gm upon r square.
ओके, अब क्या होगा यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू यूज हुई है, जी यूज हुआ है. सो जी इज कांस्टेंट, जी कांस्टेंट है. एम mass of earth, so mass of earth is also always remain constant. R is radius of earth, this value is also remain constant. So G is always constant. G की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. व्हाई इट इज कांस्टेंट, बिकॉज G, M and R आर कांस्टेंट. इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वो हमेशा फिक्स है, जिसकी वजह से वो वैल्यू क्या रहता है, फिक्स रहती है. तो अवर रेगुलर लाइफ में हम देखें जो एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. वो दोनों पे डिपेंड करता है. ठीक है, मास और फोर्स कितना लगता है उस पर डिपेंड करता है. यहाँ पे अब क्या हुआ कि जो जी हमने फाइंड किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें ऑब्जेक्ट का मास है वो गायब है. ऑब्जेक्ट का मास इसमें कहीं मिल नहीं रहा है, मतलब इट नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट मास. आप छोटा पत्थर ऊपर से फेंको, बड़ा पत्थर फेंको और बड़ा फेंको, आप प्लास्टिक की चीज फेंको, आप आयरन की चीज फेंको, कोई भी चीज आप फेंको, ठीक है. सो ये मास पे डिपेंड नहीं है. तो सभी के लिए क्या होगा, एक्सलेरेशन है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा. ठीक, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी कांस्टेंट रहता है. फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है और कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है. और ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ. सो मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब जी विल बी रिमेन कांस्टेंट. तो ये जी की वैल्यू क्या आएगी, अब जी की वैल्यू फाइंड करते हैं. जी, सो वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 into 10 to the power minus 11. नाउ मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ का मास क्या है, आगे हमने न्यूमेरिकल्स में देखा था. अर्थ का मास है 6 into 10 to the power 24 kg. एंड रेडियस ऑफ द अर्थ भी आगे हमने न्यूमेरिकल में देखा था. रेडियस की वैल्यू क्या है, 6.4 into 10 to the power 6. 6.4 into 10 to the power 6 होल स्क्वायर. अगर इनको सॉल्व करते तो वैल्यू वी आर गेटिंग इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So value of small g we are getting is 9.8 meter per second square. So यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा it traveling with a constant acceleration of 9.8 meter per second square. इतने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई भी बॉडी है वो ऊपर से नीचे तक आएगी. ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो इसमें हमने कहां पे जी डिराइव किया है, कैसे जी डिराइव किया, वंस अगेन हम रिपीट कर लेते हैं. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कौन सा एक्सेलरेशन है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, सो दिस ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय द earth by the gravitational force. So initially the velocity is 0 and continuously this velocity increases as it comes near to the surface of earth. Okay, why it should be increased, because force is inversely proportional to the distance square. ठीक है, सो डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता है, नजदीक आते जाता है, वैसे वैसे उनकी स्पीड है वो स्पीड इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है, और स्पीड इंक्रीज, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है. तो हियर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी इज बिकॉज ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट शुड बी हैपन. सो वी आर कॉल्ड दिस एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वी आर डिनोटेड इट विथ ए स्मॉल जी इंस्टेड ऑफ कैपिटल, सॉरी स्मॉल ए की जगह उनको जी से डिराइव करेंगे. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, हाइट 8 है, h हाइट से वो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की ओर आ रहा है. ठीक है, तो अर्थ है वो उसके ऊपर f जितना फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है a. सो दिस फोर्स इज गिवन बाय f इज इक्वल टू ma एज पर द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन.
Okay, so here instead of A we are using G, because here any other external force is not present, only gravitational force is present. So we are calling acceleration is acceleration due to gravity. So we are getting F is equal to mg. This is our equation number 1. And this force is because of gravity of Earth, gravitational force of Earth. So gravitational force as per the Newton's universal law of gravitation, this force is defined as capital G mm upon d square. So we are getting this gravitational force. We are comparing these two equations. So we are getting small mg is equal to capital G mm upon d square. Now here small m should be cancelled. So small g we are getting is capital G m upon r square. The unit of acceleration will be remain same, meter per second square. And here capital G is constant, mass of the earth is constant, radius of the earth is constant. That's the value of G is remain constant. Okay, so if we are finding the value of G by putting all this constant value of G, we are getting is 9.8 meter per second square. So it means we are throwing any object, okay, from the height, okay, and it is rushed toward the earth. So it's always travel with a constant acceleration. G is equal to 9.8 meter per second. It does not depend on the mass of the object. ये mass of the object पे depend नहीं करेगा. ठीक है. अब G की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं फॉर स्मॉल g के लिए. ठीक है. सो पहला इंपॉर्टेंस पॉइंट है G इज डिफाइंड फॉर द अर्थ is gm upon r square. Okay, acceleration because of earth. okay, अर्थ से जो ग्रेविटेशनल इसमें प्रोड्यूस होता है, जो ग्रेविटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो प्रोड्यूस होता है स्मॉल g, और वैल्यू ऑफ g इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ फॉर अदर प्लेनेट, अगर हम दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो क्या g की वैल्यू सेम रहेगी? g वैल्यू शुड बी रिमेन 9.8? नहीं रहेगी, क्योंकि दूसरे हम प्लेनेट पे जाएंगे तो g की वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट रिमेन सेम. बट यहाँ पे मास ऑफ प्लेनेट, अब अर्थ का मास और प्लेनेट का मास अलग होगा, और रेडियस ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट की रेडियस और अर्थ की रेडियस भी अलग होगी. मतलब है कि the value of small g is different on different planet. अर्थ का जी अलग होगा, मून का जी अलग होगा, मार्स का जी अलग होगा, सन का जी अलग होगा. मतलब कैपिटल G is universal constant, it not change anywhere, it remain constant. Okay, but value of small g is not remain constant, value of small g is changing, okay, from planet to planet, because mass of the planet and radius of the planet is not remain same, its value should be changed. So according the value of g will be changed. Okay, so for the other planet we get the value of g is equal to g mass of planet upon radius of a planet पे depend करेगा. ठीक है, तो सेम नहीं रहेगा. मतलब g is not remain same everywhere, its value is changing. Okay, now on the अर्थ अगर हम कंसीडर करते हैं कि अर्थ पे भी क्या वैल्यू सेम रहेगा जी का, कि वैल्यू सेम नहीं रहेगा, तो अर्थ पे भी अगर देखा जाए तो एक्चुअली हमारा अर्थ है वो इलिप्टिकल है, 100% स्फीयर नहीं है. तो अर्थ का रेडियस हम अगर इक्वेटर पे देखते हैं तो इनका रेडियस होता है आर ई. ठीक है, और अर्थ का रेडियस है, हम पोल पे देखते हैं तो इसका रेडियस होता है आर P. So RP is less than RE होता है, RP is less than RE होता है. यहाँ पे जो रेडियस है RP, जो रेडियस है वो रेडियस क्या है? ठीक है, कम है इससे, ये रेडियस है इक्वेटर पे जो रेडियस है वो ज्यादा रेडियस है. तो अब G किस पे डिपेंड करता है? G is proportional to 1 upon R square पे डिपेंड करता है. ठीक है,
g किस पे डिपेंड करता है, 1/r² पे डिपेंड करता है। तो अगर g है, इसको हम इक्वेटर पे फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम g निकालते हैं, सो इट्स प्रोपोर्शनल टू 1/re²। और यहाँ पे अगर हम g की वैल्यू निकालते हैं पोल पे, सो gp इज प्रोपोर्शनल टू 1/rp², इससे डिपेंड होगा। तो हियर re इज ग्रेटर देन rp होगा, re is greater than rp, so g on equator is less than g on p। मतलब g की वैल्यू है वो एक्चुअली अर्थ के लिए देखा जाए तो भी 9.8 थ्रू आउट द अर्थ नहीं रहेगा। अगर हम इक्वेटर पे जाएंगे तो g की वैल्यू है वो अलग होगी, अब पोल पे जाएंगे तो g की वैल्यू अलग होगी। पोल पे g की वैल्यू ज्यादा होगी, इक्वेटर पे g की वैल्यू कम होगी, क्योंकि दोनों की रेडियस इक्वल नहीं है। तो ये रेडियस का जो डिफरेंस है, difference of radius re minus rp is just 21 किलोमीटर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। That's why g की वैल्यू में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए हम g की वैल्यू है वो अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट करके चलते हैं। सो थ्रू आउट द अर्थ सरफेस हम g की वैल्यू को सेम कंसीडर करेंगे, अलग अलग कंसीडर नहीं करेंगे। एक्चुअली g की वैल्यू में डिफरेंस आएगा पोल और इक्वेटर पे, फिर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज, फॉर द कैलकुलेशन पर्पज वी आर कंसीडरिंग वैल्यू ऑफ g इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में हम उनको कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट g की प्रॉपर्टीज क्या है, कंक्लूजन क्या है। तब यहाँ पे हमने देखा था कि ये h की वैल्यू है, ठीक है। जब तक ये h की वैल्यू है वो r की वैल्यू से मच मोर स्मॉल है, तब तक हम उनको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। g एट बिगर हाइट, अगर हाइट हमारा ज्यादा है तो क्या होगा, इफ h इज इंक्रीज, ठीक है। मतलब ये अर्थ जो है, ठीक है, इनका रेडियस r है, ये अर्थ है, और कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये हाइट h है। अब h इज मच मोर लेस देन r है, ठीक है, तब तक वी आर इग्नोरिंग द h, तब तक हम क्या करते हैं, h को इग्नोर कर देते हैं, हम h को कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते हैं। हम सिर्फ g की फॉर्मूला लिखते हैं, तो g की फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, यहाँ पे g इज इक्वल टू कैपिटल G m/r², ऐसे हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। वी आर इग्नोरिंग दिस वैल्यू ऑफ h। पर जब ये h की वैल्यू है, ठीक है, h इज हाई, h की वैल्यू ज्यादा हाई हो जाएगी, मतलब हमें उनको कंसिडरेशन में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तब हम g की जो वैल्यू है वो g की वैल्यू हम मोर हाइट पे निकालते हैं, तो वी आर गेटिंग g इज इक्वल टू g r/r प्लस h होल स्क्वायर। g की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, gh इज इक्वल टू g इंटू r/r प्लस h होल स्क्वायर। मतलब अगर हम अर्थ से बहुत दूर चले जाते हैं और जिसका डिस्टेंस है वो हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा एज रेफरेंस टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तब जाके g की जो वैल्यू है वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जस्ट वी आर नॉट यूजिंग gm/r², बट g एट द हाइट वी हैव टू कंसीडर g इज इक्वल टू r/r प्लस h होल स्क्वायर। जो g है उनको ये r/r प्लस h होल स्क्वायर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ g, g की वैल्यू है वो हमें मिलती जाएगी, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ए g का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि g की वैल्यू क्या होगी। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज कि g इज कैलकुलेटेड बाय द gm/r², सो इट्स वैल्यू वी आर गेटिंग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज ऑन द अदर प्लैनेट, इफ वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ g, so it should be different than earth because mass and radius of the other planet should be different। मतलब वैल्यू ऑफ स्मॉल g is not remain constant throughout the universe, is like a capital G value, okay। And on the earth even the radius of equator and radius of a pole is not same, radius of equator is greater as compared to radius of pole, so it inversely proportional, so g at pole is higher as compared to g at equator, but there is no much more changes, so uniform consideration we are taking value of g on the earth surface is 9.8 meter per second square। Now if object is at high places,
अगर ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, एंड वी मस्ट हैव टू कंसीडर दिस डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ से जब ये डिस्टेंस को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, हम उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ जी शुड बी चेंज, एंड एट दैट टाइम वैल्यू ऑफ जी वी आर गेटिंग इज इक्वल टू जी इनटू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये देखा कैसे होता है। तो फिर भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब देखते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से छोड़ देते हैं, तो एज पर द रूल्स वो दोनों ऑब्जेक्ट है वो सेम एक्सेलरेशन 9.8 से नीचे आने चाहिए, पर ऐसे नहीं होता है। क्यों ऐसे नहीं होता है? बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे इनको प्रूव करने के लिए हमने कंसिडर किया है कि ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स आर प्रेजेंट, वी आर इग्नोरिंग ऑल अदर फोर्सेस, बट इन our regular life, in daily life, only gravitational force is not present, other forces are also present, and the main force presence is the resistance of air. air presence होती है और air का resistance लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो heavy object है जिसको air resistance इफेक्ट नहीं है वो ज्यादा स्पीड से नीचे आता है, और जो lighter object है जिसको air resistance इफेक्ट होता है वो कम स्पीड से नीचे आता है। ठीक है, तो एक हम कागज ले लेते हैं और एक पत्थर ले लेते हैं, तो एक्चुअली दोनों है वो सेम स्पीड से नीचे आना चाहिए, पिन की जगह दोनों की स्पीड अलग अलग है। सो दिस इज नॉट बिकॉज वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट, नॉट बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफरेंट, बट बिकॉज ऑफ external force presence over here, and this external force presence over is resistance of air. So resistance of air is effect onto the paper and it does not affect onto the stone, so it not change any acceleration in change, but it should change the acceleration or velocity of a piece of paper. But same experiment if we are performing in absence of any other external force, it means in a vacuum, if we are performing the same experiment, so any object is comes on the down surface with the same time and with the same velocity with the same acceleration से वो object नीचे आएगा, because it not depend on the mass of object, mass of object से उसको कोई dependency नहीं है। ठीक है, so this is about the small g. Now free fall body and equation of motion for it. ठीक है, तो फ्री फॉल बॉडी के बारे में तो हमने देखा कि कोई भी जो बॉडी है यहाँ पे अर्थ है और कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मास m वो h हाइट पे है। ठीक है, और यहाँ से अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो वी आर कॉल्ड इट्स फ्री फॉल, बिकॉज हियर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट, नो एनी अदर फोर्स आर present. Okay, so the motion which is performed under the effect of only gravitational force is known as a free fall body. We are not applying any other forces. ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। पर और वो ऑब्जेक्ट पे हम कंटिन्यूसली फोर्स लगा के नीचे आ रहे हैं तो दिस इज नॉट ए फ्री फॉल, उसको फ्री फॉल नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे अदर एक्सटर्नल फोर्सेस आर आल्सो present, but the object which is freely traveling in air because of gravitational pull of earth is nothing but a free fall body. ऐसे जो बॉडी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्री फॉल, which is pulling toward the earth, which is coming toward the earth because of only gravitational forces, no any force are present, so this is known as a free fall body. Okay, now free fall body के लिए हमें equation of motion, so फर्स्ट चैप्टर में हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था कि v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड सेकंड इक्वेशन हमने डिराइव किया था, और थर्ड इक्वेशन में लिया था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ऐसे 3 इक्वेशन है वो हमने
डिराइव किया था फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन के इक्वेशन के लिए 3 इक्वेशन किया था। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो हमारा ए था एक्सेलरेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एफ इज इक्वल टू मास इनटू ए। यहाँ पे जो एफ था वो क्या था, एक्सटर्नल फोर्स था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ था, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था। अब यहाँ पे हमें कंसीडर करना है, तो यहाँ पे क्या है, जो एफ है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पे जो एक्स फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसमें क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, जी रिप्लेस हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन वी आर गेटिंग v इज इक्वल टू u प्लस gt, this is first equation of a motion. Second equation s we are getting is equal to ut plus half gt square, this is second equation of motion. And third equation we are getting u square minus u square is equal to 2gs, this is third equation of motion. ठीक है, इक्वेशन है वो सेम रहेगा, ओनली डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन था बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंस ओवर हियर, जो एक्सेलरेशन था इनके जगह यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो एक्सेलरेशन है वो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो एक को रिप्लेस किससे कर दिया जाएगा, जी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी हम जब बात करते थे तब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दो चीज होती थी। एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव वैल्यू भी आता था, नेगेटिव वैल्यू भी आता था। जब हम फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम थी तब क्या था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन था। और जब फोर्स और एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था तब क्या उनकी डायरेक्शन नेगेटिव थी और उसमें क्या था, रिटार्डेशन हो रहा था। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, जी की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। तो जी की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी और जी की वैल्यू कब नेगेटिव होगी। तो अगर कोई भी फ्री फॉल बॉडी है, अगर वो बॉडी नीचे आ रहा है तो क्या क्या है, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है जी, उनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम डायरेक्शन है। सो वैल्यू ऑफ जी वी आर कंसीडरिंग इज पॉजिटिव। सो जी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी व्हेन द बॉडी इज ट्रैवलिंग इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब कोई भी बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तब उनकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि फोर्स और ग्रेविटी है उसकी दोनों की क्या है, डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है। सो वी आर टेकिंग इज प्लस 9.8, ओके। बट जब बॉडी इज ट्रैवल इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब कोई भी बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरह है, ठीक है। और ग्रेविटी है वो क्या है, ऊपर की तरह हो रहा है। तो कंटिन्यूसली उसमें क्या मिलेगा, रिटार्डेशन मिलेगा। सो एट द टाइम वैल्यू ऑफ जी वी आर गेटिंग इज नेगेटिव वैल्यू। सो जी वी हैव टू कंसीडर माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये केस में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, और यहाँ पे कुछ इसको फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो वैल्यू ऑफ जी वी आर कंसीडरिंग इज पॉजिटिव, और इसमें यहाँ पे क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज इट वर्क्स अगेंस्ट द फोर्स, फोर्स की अगेंस्ट की डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। मतलब वैल्यू ऑफ जी वी आर कंसीडरिंग इज नेगेटिव। सो जी की वैल्यू यहाँ पे हमें नेगेटिव लेना है। तो ये पॉइंट आपको खास याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेक मिस्टेक ओवर हियर टू टेकिंग द वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या वैल्यू हमें लेना होता है उस पे होता है, क्योंकि एक और भी चीज इसमें होती है। क्या चीज होती है कि जब पहले बॉडी ऐसे ट्रैवल कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है बॉडी, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे इनकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। तो यहाँ पे हम जी जब कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे जी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब वही बॉडी अब फिर से क्या हो रहा है कि यहाँ से यू टर्न लेके वो बॉडी कहाँ आ रहा है, वापस आ रहा है। तो यहाँ पे वापस आ रहा है, तो यहाँ पे अब इनिशियल वेलोसिटी है
वो जीरो हुई, फाइनल वेलोसिटी कुछ वैल्यू होगी, और यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो एक ही केस में उनकी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव आ सकती है। कभी हमें ऐसे कैलकुलेशन करना होता है कि अगर बॉडी है वो ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये तो फिक्स है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रैवलिंग है और जी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन है, तो जी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो पहले बॉडी ऊपर जा रहा है, फिर वापस बॉडी नीचे आ रहा है, तो एक ही केस में जी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो ये बात को खास आपको ध्यान में रखना है कि जी की वैल्यू हम कब पॉजिटिव लेते हैं और जी की वैल्यू है वो कब हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इट। सो फर्स्ट थ्री इक्वेशन व्हिच वी आर लर्न इन फर्स्ट चैप्टर, सेम इक्वेशन वी आर गेटिंग ओवर हियर, ओनली चेंज इज दैट instead of acceleration A, here we are using G, acceleration due to gravity, and value of G is positive or negative. So when body is free falling, so we are considering G is positive, and when body is traveling in upward direction, G we are considering is negative. Okay. So हमने कैपिटल G और स्मॉल G देखा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, तो कैपिटल G और स्मॉल G, okay? डिफरेंस क्या है, दिस इज व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज acceleration due to gravity. Okay. Of value of G is constant, its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square upon kg square, and value of G is equal to 9.8 meter per second square on earth only. सिर्फ अर्थ पे इसकी वैल्यू यहाँ रहेगी, बाकी जगह पे इसकी वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में कहीं भी जाए इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एंड वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेस पे इसकी वैल्यू है वो अलग हो जाएगी। यहाँ पे ये जी को डायरेक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इनको डायरेक्शन के मतलब है तो ये है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये स्केलर हो गई, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का, ठीक है। और वैल्यू ऑफ ए स्मॉल जी, इसका जो वैल्यू है, अगर अर्थ के सेंटर पे हम जाते हैं, अर्थ सेंटर, तो इसका वैल्यू हो जाता है 0, ठीक है। और जी का वैल्यू है, अर्थ सेंटर पे लेते हैं या तो कहीं पे भी लेते हैं, उसका वैल्यू रहेगा सेम, उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ जी, ये जी का जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, और दिस वैल्यू ऑफ जी कैन पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, तो खास आप इस पॉइंट को याद रख के लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि भी जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू, वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं तो उसमें कितना चेंज और किसी प्रकार चेंज आ सकता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ मून due to gravitational force of the moon. Find the ratio of this acceleration to the experience by the same particle on the surface of earth.
if the acceleration due to gravity on the earth is 9.8, so what is the acceleration of the particle on the moon surface? Mass of the moon is given, mass of the earth is given, radius of the moon is given, radius of the earth is given. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक अर्थ दिया हुआ है और एक मून दिया हुआ है. अब अर्थ का जो मास दिया हुआ है और अर्थ का रेडियस दिया हुआ है, मून का मास दिया हुआ है और मून का रेडियस दिया हुआ है. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है? मास ऑफ अर्थ इज गिवन इज 6 into 10 to the power 24 kg and mass of the moon is given 7.3 into 10 to the power 22 kg. Now radius of the earth is given 6.4 into 10 to the power 6 meter and radius of the moon is given 1.74 into 10 to the power 6 मीटर. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी दिया हुआ है इज 9.8. सो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करना है. मून पे जी की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें लेना है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो यहाँ पे आ रहा है और सेम मास वाला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ रहा है. दोनों का हाइट है वो भी हम सेम कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा और यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा? जी का वैल्यू हमें फाइंड करना है. ठीक है, अब हमने पहले ही हम देख चुके हैं कि जी का वैल्यू है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं है, मतलब ये मास पे उसको कोई डिपेंडेंसी नहीं है. सिर्फ जी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है. ठीक है, इसके मास पे डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब इनको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, एज को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ कंसीडरेशन में क्या आएगा? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून. ठीक है, तो ये अर्थ के लिए हम लेते हैं, तो यहाँ पे अर्थ के लिए लेंगे. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, और यहाँ पे हम मून के लिए लेंगे तो वी आर गेटिंग इज जी एम इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब इन दोनों के बीच का हमें रेशियो फाइंड करना है, तो जीई अपॉन जी एम हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये आएगा तो रिवर्स हो जाएगा. सो आर एम स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम एम आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अब कैपिटल जी है वो क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा. सो जी ई अपॉन जी एम वी आर गेटिंग इज इक्वल टू एम ई इंटू आर एम स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू एम एम. ऐसे हमें वैल्यू है वो वैल्यू मिलेगा. ठीक है, तो इसका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है. अगर ये वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं तो मास ऑफ अर्थ है वो 6 into 10 to the power 24 होगा. अब रेडियस ऑफ द मून दिया हुआ है 1.74 into 10 to the power 6, उसका स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ पे मास ऑफ मून दिया है 7.3 into 10 to the power 22 हो जाएगा. और रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6.4 into 10 to the power 6, उनका स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अगर इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ जी एम, वैल्यू ऑफ जी एम इट मीन्स ग्रेविटी. ठीक है, acceleration due to gravity on moon is we are getting is 0.16 into GE. ओके, ग्रेविटेशन ऑन अर्थ. सो मतलब मून का ग्रेविटेशन जो है, इनका एक्सेलरेशन जो है वो अर्थ के एक्सेलरेशन से 1.6 टाइम ही होगा. इतना कम होगा. क्यों कम होगा? बिकॉज द मास ऑफ द मून इज लेस देन मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस इज ऑल्सो लेस. ओके, so that okay value of this we are getting is this. So value of gm if want to calculate, so 0.16 into earth हमें दिया हुआ है 9.8. अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो we are getting is 1.56 meter per second square. This we are getting is acceleration on the moon. तो मून है, अगर उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फॉल करेंगे, फ्री फॉल, सो इट ट्रैवल विथ एक्सेलरेशन ऑफ 1.57 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
जो अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रहा है, ठीक है। तो जी की वैल्यू ऑफ प्लेनेट टू प्लेनेट वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी फॉर एनी अदर प्लेनेट इफ वी नो द मास एंड रेडियस ऑफ दिस प्लेनेट। मास और रेडियस अगर हम जानते हैं कोई भी प्लेनेट के लिए, सो वी कैन find out its value. Okay, thank you. Today we will stop here. In next lecture we will start to solve the numerical based on this topic. Okay, thank you and have a nice day.